السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دم کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان بزدار آپ کے حسب حال پروگرام میں اپنے دل کی باتیں کرنی چاہتا ہے۔ یہ سوچ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے آپ کے ٹیلی فون کی ٹلی کھڑک جاتی ہے۔ جنید صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے دانتوں میں انگلیاں لے لی ہیں، بیچارے ناکام ہو گئے ہیں۔ اور میں ان کو شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ میری طبیعت اس طرح کی ہے، شروع میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو میرا جس دن رزلٹ آنا تھا نا جی، تو ابا جی نے مجھے سائیکل پہ پیچھے بٹھایا اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے مجھے لے کے گئے تھے اسکول کہ فیل تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اور ادھر سارے اسکول کے درمیان میں نے اس کو پھینٹی لگانی۔ مگر جنید صاحب، جب ہم سائیکل پہ دونوں باپ بیٹا اسکول میں انٹر ہوئے نا، تو ادھر پرنسپل صاحب کی آواز آ رہی تھی مائک کے اوپر، عثمان بزدار سٹوڈ فرسٹ۔ جنید صاحب حیران ہو گیا، سارا اسکول اکا بکا رہ گیا۔ ابا جی نے ادھر ہی سائیکل کھڑی کر کے تو میرا متھا چوما۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ پنجاب کی کارکردگی پہ بھی کسی دن عمران خان صاحب میرا متھا چومیں انشاءاللہ۔ لیکن والد صاحب نے تو ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، خان صاحب کا ڈنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ نہیں جنید صاحب، وہ چھپا ہوا ڈنڈا صرف میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب خان صاحب ادھر آتے ہیں لاہور اور میرے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ 1 to 1 ملاقات بھی کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی ساری چیزیں پغت جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کی خان صاحب کے ساتھ 1 on 1 ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ یوں بھی کرتے ہیں؟ جنید صاحب، یوں کس لیے کرنا ہے؟ اگلی باری ٹکٹ نہیں لینی۔ دیکھیں، یہ اندرونی باتیں ہوتی ہیں، یہ بار بتانے والی نہیں ہوتی۔ آپ تو ماشاءاللہ خود بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ جنید صاحب، اللہ کے فضل سے آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہماری گاڈ اپ جو ہے وہ 4 سے اوپر نکل گئی ہے۔ حالانکہ 4 سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر اللہ کے فضل سے ہم لوگ گاڈ اپ میں 4 سے اوپر نکل گئے ہیں، اور اتنا جانا ہے ابھی ہم نے۔ گاڈ اپ کیا؟ گاڈ اپ، اس کا مطلب ہے آپ بھی معیشت کی اصلاحات سے واقف نہیں ہیں۔ گاڈ اپ جس کے سپیلنگ ہوتے ہیں جی، پھر ڈی۔ اچھا، یو مین جی ڈی پی؟ جی ہاں، یہ سپیلنگ ہے نا جی ڈی پی، اور یہ ملا کے گاڈ اپ بنتا ہے۔ یعنی جو گڈ پھنسی ہوئی تھی آپ وہ نکل آئی ہے، بس یوں ہی سمجھ رہے۔ اللہ آپ کی خیر کرے، آپ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اکاڑے میں آپ بھی گاڑی چلاتے رہے۔ بڑی آپ نے بریک بات کی ہے، جو گڈ پھنسی ہوئی تھی نا جی حکومت کی، وہ نکل گئی ہے۔ سر جی، مولا جٹ فلم میں تو نوری ناتھ نے گڈ نکالی تھی، تو حکومت کی گڈ آپ نے نکالی ہے؟ جی، یہ بزدار صاحب نے گڈ کھڑنی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے گاڑ نکالی ہے۔ یہ وہ سمجھ گئے نا، بریک آدمی ہے نا۔ آپ دیکھیں، صحافی ہیں، ساری بات کو سمجھتے ہیں۔ اشارہ ہی ابھی دیا ہے تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ گاڑ نکال دیا بزدار۔ ہم بھی صحافی ہیں، ہم نے کون سے چھولے لگائے ہیں، صحافی سارے ہی۔ اچھا، آپ لوگ بھی صحافی ہیں؟ میں نے سمجھا شاید اپنی درخواست لکھ رہے ہیں بزدار کو دینے۔ نہیں سر جی، میں تو شوقیہ جرنلسٹ ہوں، بیسیکل تو میں ہارٹ سرجن ہوں۔ صحیح جھوٹ بلیندہ پہ میں نے خود دیکھا، واقعی ہارٹ سرجن ہے۔ یہ ادھر لکشمی چونک پہ توے کے اوپر دل گردے بنا رہا ہوتا ہے۔ سر ایسا ہارٹ سرجن دل نکال کے کہتا ہے، نال گردے بھی اندھے سے سواد آ جاتا ہے۔ یہ بناتا ہے نا جی توے پہ، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے پچھلے دنوں وہ ایک نیا پروگرام، نئی ایپ متعارف کروائی ہے عوامی خدمت کے حوالے سے، خدمت آپ کی دہلیز پہ۔ آپ کے گھر کے سامنے کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس نمبر پہ آپ ڈائل کریں، فوراً سرکار خود آپ کے دروازے پہ پہنچے گی۔ جنید صاحب، اس کے حوالے سے تو حالہ لالا ہی ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے ہیں یہ سن کے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہمارے دروازے کے آگے آ جائے گا، اور میں نے اب پڑ جانا ہے۔
अच्छा ये ज़हन में रखें, आवाम बेफिक्र हो जाए। अब कोई प्रॉब्लम उनके घर की जो है टूटी लीक कर रही हो, सज्जे खब्बे तथीरी निकल रही हो, उस पे टेपे लगाने की और उसके ऊपर ये इट्टे शिट्टे रखने की जरूरत नहीं है। अब वजीर आला आएगा, टूटी बदल के जाएगा। आपकी अगर प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बज रही तो उसकी क्या जरूरत है ना बजे। आप देखिएगा कि वजीर आला खुद प्रेशर कुकर के दांतों के अंदर उंगलियां रखेगा, मार सीटी क्यों नहीं बात होती। और अगर सीटी ना रुक रही हो, खामखा बज रही हो, फिर उसको भी जुनैद साहब हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों से दरखास्त है कि सारे अपने अपने दरवाजे की घंटियां ठीक करवा लें। ये ना हो कि बुजदार बार टलियां खड़काता रहे और आपको अंदर आवाज ही ना जाए। और दूसरी दरखास्त वजीर आला की ये है कि हमारी माएँ बहनें जो है ना जी, वो गराज का फर्श धोते हुए जो अंदर से बंद गेट के नीचे से पानी की बाल्टी रोड़ देते हैं, उसका जरा एहतियात कीजिएगा। ये ना हो कि बाहर बुजदार खड़ा हो, अंदर से बाल्टी पानी की आए और वजीर आला के पहुंचे गिल्ले हो जाए। इंशाअल्लाह ताला जुनैद साहब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि लोगों को घर की दहलीज के ऊपर हर सहूलत मुहैया कर दी। सर जी जिदी बेल नहीं होगी वो उथे आवाज दोगे कि जाग दे हो? नहीं, मैं वही तो दरखास्त कर रहा हूँ कि बेल अपनी ठीक करवा लें। हमने तो टली खड़कानी और आगे निकल जाना। तो जुनैद साहब ये जो प्रोग्राम है ना खिदमत आपकी दहलीज पर, इंशाल्लाह 3 हफ्तों में हमने आपकी गलियां महल्ले तेजाब डाल के फर्स्ट क्लास चमका देने। और आप देखिएगा सरकारी इमारतों के मत्थों पे भी कूची के साथ ऐसा साबन माल के लश्का देनी है कि सारा पाकिस्तान आपको नवा लगना शुरू हो जाएगा। जिसका हमने वादा किया था इंशाल्लाह वो पूरा करने के लिए नया पाकिस्तान वाला ये 3 हफ्ते का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सही बुजदार साहब ते इतना बड़ा कदम चेंदे पहन के डायनासोर तो ही बड़ा कदम हो सी। डायनासोर जिहड़ा कदम, डायनासोर दा ते एक कदम जीपीओ चौक च हुंदा है, एक कदम लक्ष्मी चौक च हुंदा है। उसको चलान का डर नहीं ना होता। आप फिक्र ना करो, हमारा भी यही हाल होगा। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि हर तरफ हमने भागदौड़ शुरू कर दी है। तो जुनैद साहब बात ये है कि अब आप अपोजिशन को बता दें कि इनकी दाल नहीं गलने वाली, बेशक ये जितनी मर्जी आग तेज कर ले। सर अगर वो मीठा सोडा डाल लें तब भी नहीं गलेगी। आज तो मैनू खाला बुशरा दा मुंडा लगदा है। ओदे घरों जदों भी छोले आउंदे सन ना ते विच मिठा सोडा बड़ा वल हुंदा सी। अच्छा बुज़दार साहब ये फरमाएं कि आप जो अचानक नींद से बेदार हुए हैं और आपने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह ये तो नहीं कि अपोजिशन अभी अगले मरहले में सड़कों पे आने की तैयारी कर रही है, जलसे जुलूसों की तैयारी कर रही है? जुनैद साहब अपोजिशन का तो हमें कोई डर खौफ है ही नहीं। अपोजिशन जो है ना जी वो तो अब बिल्कुल हनेरी में उड़ने वाले शापर की तरह हो गई हुई है। उसकी कोई अपनी मंजिल है ही नहीं। कभी वो उतां जाके दरख्त की टहनी में फंस जाता है शापर, कभी वो नीचे सड़क के ऊपर खजल हो रहा होता है। आप देखें ना, अब ये जो अपोजिशन है ना ये प्लास्टिक का सांप है। अच्छा, वो शुरू में आप किसी के ऊपर फेंक देना तो उसकी चीख निकल जाती है, मगर जब वो पकड़ लेता है उसको पता चल जाता है कि सांप प्लास्टिक का है तो उसके बाद क्या डर रह जाता है उसका। ये अब हमें पता चल गया कि अपोजिशन प्लास्टिक का सांप है और असली सांप जो है वो तरीन ग्रुप है। जुनैद साहब उसकी भी वैसे उसकी शक्ल मिलती है सबसे, मगर हमें उसका खौफ शौफ कोई नहीं है। वो अल्लाह के फजल से सारे लोग हमारे साथ ही। आपने देखा है कि हर दूसरे दिन वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं और वो फिरदौस आशा कवान के SOPs का भी ख्याल नहीं करते, जफ्फियां जुफ्फियां लगा के मेरे साथ पपियां पुपियां लेके जाते। वो इसलिए कि आपने सारे मुतालबात उनके मान लिए हैं। तो ठीक है, बस हम यही पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि जो भी आए उन्हें मुंडा दे के टोरो। ये गल टेलीविजन ते ते ना हो। ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੋਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨੀ। ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਥੱਲੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਡਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪਿਆ ਕੱਟਦਾ। अच्छा वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ही पूछ रहा हूँ, मैंने ये सुना है कि आपने जितने भी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं उनको अगले इलेक्शन में टिकट विकेट भी नहीं देनी। ये गल्ला बाद ही चुकार लगे, हल्ले ते जरा आगे गाल टोरो ना। सही जुनैद साहब गाल करो उन्हां दी स्टेप दी जेड़ा खिदमत को दरू के ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे ते ले आया है। बुज़दार साहब जरा देख के सफाई शफाई करवाइएगा।
मतलब बहुत सारे लोग हैं इस सफाई के और साफ माहौल के आदी नहीं है। ये हमारे गौरी साहब हैं, ये मुझे बता रहे थे कि अगर इनकी गली में सफाई हुई हो ना तो इनका दम घुटने लगता है। जुनैद साहब, ये जो पिछली हुकूमतों ने लोगों की आदतें बिगाड़ दी हुई है ना, वही तो हमने ठीक करनी है इंशाल्लाह। हमने गौरी साहब का दरवाजा भी चमकू के लश्का के साथ इनको जब हमने अतर की शीशी भी दी ना, रोज जरा माल के निकला करें, तो फिर देखना इन्होंने दुआएं ना दी तो फिर कहना वाह जी वाह, जिए भुट्टो। ओ भाईया जी, ये भुट्टो केड़ा आतर माए दिता है। हाँ, बल्ला बल्ला बल्ला। अच्छा सर, आपका एक और स्टेप भी बड़ा काबिल जिक्र है जो आपने ऐलान किया कि 2025 तक पंजाब को सोलर प्रोविंस बना देंगे। अच्छा, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे। जुनैद साहब, आप देखना कि बिजली हमने इतनी को बना देनी है कि आपने जब किसी दोस्त रिश्तेदार के घर मेहमान जाना है ना, तो 7 फ्रूट की बजाय शापरों में बिजली डाल के लेके जाए। अस्पतालों में जिन्होंने खबरगिरी करने जाना है, शापर में बिजली लेके जाए। सूरज की किरणों से डायरेक्ट करंट पड़ेगा आपको। मैं कहता हूँ जुनैद साहब के बिजली इतनी को बन जाएगी ये सोलर एनर्जी से ही कि लोगों ने कहना को हाल और रब्बा एडी बिजली कोठियां दे उत्ते इकट्ठी होई पई है। आज जिस तरह बसंत दे दिहाड़े पतंगा नहीं बो हो के ते कोठियां ते डिग्गियां पईयां हुंदियां, इंज वेखना तुसी कई वोल्ट बिजली तुहाडे कोठियां ते डिग्गी पई होनी। मैं आना जुनैद साहब, बारिशां दे दिन जिदी छत ते भी पानी खलो गया ना, तुसी उत्ते जाके वेखना है ते परनाले च बिजली फसी पई होनी। सर ये खतरनाक नहीं होगा कॉम्बिनेशन? नहीं जुनैद साहब, तुसी लकड़ दी डांग फेरो ना ओदे अच्छा ते लकड़ ते बिजली असर नहीं करदी। जुनैद साहब, इस अन्य सोलर प्रोजेक्ट का एक इखलाकी फायदा भी होगा। छत्तां दे उत्ते बिजली अन्य वाह पई हो सी, थल्ले को मुंडा आया ना छत दे उत्ते सज्जे खब्बे सीटी साटी मारन वास्ते, ते पैरां ते इहो जिहा करंट वजेगा कि उसे वेले थल्ले भज जासी। मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। PIA ने कुछ मराहत का ऐलान किया है, नतीजा ये निकला है कि अभी ये पिछले एक हफ्ते के दौरान 10,000 टन जो है आम एक हफ्ते के दौरान वो बैरून मुल्क रवाना हुआ है। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, आमों के हवाले से एक अच्छी खबर है। माशाअल्लाह, डॉक्टर ने गोगे को मना कर दिए हैं। यार खुदा का खौफ। अच्छी खबर तो यही होगी कि आप मेरे लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हें। वो आमों की पेटी में जो मसाला होता है ना, वो गिलास में हल करके देना आपको। खुदा का खौफ करो यार। जी सर जी, गोगे को तो पूरा आम मना हो गया ना, जुल्फी को गिटक मना की है। डॉक्टर ने कहा गिटक बड़ी है, मुंह तुम्हारा छोटा है। ये पूरी गुठली भी नहीं खा सकता बेचारा, और गुठली के बाल नहीं निकल आते, मूछे निकल आते, ये एक बाल तोड़ के भाग जाता है बस। सारा दिन चूसता रहता है बाल को। खुशखबरी सर, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान इस साल आमों की पैदावार का भी और एक्सपोर्ट का भी जी सारा अगला पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगा। माशाअल्लाह से अच्छी खबर आई सर। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आमों की पैदावार के हवाले से 14 लाख टन से जंप करके 20 लाख टन तक पहुंच गया। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो भी 1.25 लाख टन से बढ़ के 2 लाख टन हो गई है। हम अक्सर रोना रोया करते हैं कि आम हमारी बड़ी मतलब एक ताकत है हमारी एक्सपोर्ट की फलों के हवाले से। उसमें पाकिस्तान जैसा फल जो आम है ये कहीं होता ही नहीं है। मैं कहता हूं जी कि अंग्रेज तरसता है हमारे चौंसे को। चौंसे को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ कि गोरा जो है ना जी, एक चौंसा ते एक नुसरत फतेह अली, इन्हां दुआं नाल ही बहुत प्यार कर दे। दोनों मीठे शहद। माशाल्लाह, एक्सप्लेन कर दिया, वरना लोगों को पता नहीं था चलना मैंने कहा क्या है। पाकिस्तानी आम जो है ये फलों की एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की ताकत बन सकता है। और थोड़ी सी संजीदगी की जरूरत है। एक आमों की जो ट्रांसपोर्टेशन है तो वही हुआ। इस बार PIA ने कुछ मराहत का ऐलान किया है, नतीजा ये निकला है
جی کہ ابھی یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 10,000 ٹن جو ہے آم ایک ہفتے کے دوران وہ بیرون ملک روانہ ہوا ہے, اور اتنی زیادہ بکنگ ہے, بلکہ اوور بکنگ ہے کہ پی آئی اے کو مسافروں کے بغیر بھی طیارے اڑانے پڑے ہیں آموں سے لدے ہوئے. یہ نے یہی سوچا ہوگا نا, سواری تے کو بین نہیں ڈئی تھی آم بھی ٹوئیے. سیٹوں پہ لنگڑا بیٹھا ہوا ہے, لنگڑا بیٹھ کے گیا. آپ ذرا ویژولائز کریں نا کہ لنگڑا بیل دے کے ایئر ہوسٹس کو بلا رہا ہے, میری لات نہیں ہے کہ میں کمبل دے جا. ساری یہ جو جہاز عام لے کے اڑتا ہے, مکھیاں تو نہیں اس کا پیچھا کرتی. ہماری سوچ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کی ٹکٹ کے تو اس کے پاس پیسے نہیں, کسی مکھی تے بیٹھ کے نکل جاوے. اچھا سر, پیسے کتنے کما لیں گے ہم؟ 25 سے 30 کروڑ ڈالر, جو اس سے پہلے ہارڈلی 10-15 کروڑ ڈالر ہوا کرتے تھے. تو آلموسٹ دگنی ہو جائے گی ہماری اماؤنٹ. ساری یہ انگریز بھی عام لے کے بچوں کے ساتھ ٹیوبل پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یار ہن تو پوچھیں گا کہ انگریز بھی اپنے بچے دی ٹینڈ کرا کے ہوتے گٹک مالدا ہے. وہ بات کرو کرنے والی یار, خدا کے واسطے. اچھا, آموں کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو ملک زیادہ آم پیدا کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں. ہندوستان, چائنا اور تھائی لینڈ تو خیر ایکسپورٹرز میں بھی آتا ہے. ہندوستان اب آموں کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 ہے. اچھا, پیداوار سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتی ہے, لیکن ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ 6 نمبر پہ ہے, جس کو اب پاکستان ریپلیس کر کے 5ویں نمبر پہ آ جائے گا. پاکستان 8ویں نمبر سے جمپ کر کے 5ویں نمبر پہ آ جائے گا. اچھا, اسی طرح امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا آموں کا امپورٹر ہے. 1 ارب ڈالر کے آم امپورٹ کرتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے. پاکستان کا جو سندھڑی ہے وہ امریکہ کی جو امپورٹ لسٹ ہے اس میں 3رے نمبر کی بریڈ ہے. وہ سر جی امریکہ میں آم نہیں ہے؟ بہت کم ہے. امریکہ سب سے زیادہ جو آم امپورٹ کرتا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر میکسیکو سے کرتا ہے. میکسیکو نمبر 1 ہے دنیا میں آموں کا ایکسپورٹر. اچھا, جتنا آم ایکسپورٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں اس کا 15% جو ہے وہ میکسیکو ہے. پھر دوسرے نمبر پہ غالباً پیرو ہے, تیسرے نمبر پہ پھر تھائی لینڈ ہے, پھر برازیل ہے, پھر ہالینڈ بھی آتا ہے. تو پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں اب الحمدللہ 5ویں نمبر پہ آ گیا. سر جی دنیا میں کون سا آم ہے جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ اگر تمہیں بتا دیا تو تم ایکسپورٹ ہونے نہیں دو گے. یہ تو سب وہ جو اچار الا لکیلی جو دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والا آم ہے نا وہ گوگے سے محفوظ ہے. شکر ہے, پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں تو درخت اونچا ہوتا ہے؟ اونچا ہونا کوئی تمہاری پہنچ سے محفوظ ہونے کی علامت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے فلپائن کا کیراباؤ. کہ تیرا کی تعلق کیراباؤ نال؟ یہ کیراباؤ جو ہے یہ فلپائن میں بھینس کی نسل کا بھی نام ہے, بریڈ کا بھی نام ہے کیراباؤ. مجھ دا نام ہی کیراباؤ تے امب دا نام ہی کیراباؤ. بندہ امب لے کے گھر جاوے مڑ کے فون کر کے دوستاں نوں دس رہا ہے یار 2 کلو کیراباؤ لیندا ہے, انہیں 4 کلو دودھ دے دیتا ہے. بیوی خامد نوں کہے کیراباؤ کٹ کے تے مہمان اگے رکھو, خامد مجھ کٹ کے ڈائننگ ٹیبل تے لا دے. مجھ نوں عزیزی آواز دیندے کڈے چنگے لگدے ہون گے, کیراباؤ کیراباؤ. شوہر بیوی کو کہتا ہوگا مہمان آئے نا ٹھنڈے کیراباؤ لے کے آؤ, بیوی کہتی ہوگی وہ تو چرن چلی گئی. اور یہ کیراباؤ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والا آم بھی ہے اور دنیا کا سب سے میٹھا آم بھی ہے. ارے واہ, اچھا جی, سب سے زیادہ شیریں ہے. یہ چونسا شونسا یہ وہ یہ سب سے زیادہ میٹھا. اب ضرورت سے زیادہ اگر مٹھاس ہو آم میں تو وہ بھی آپ کے غالباً ٹیسٹ برڈز کو سوٹ نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ پسند بھی آئے میٹھا جو ہے. یار یہ تو تم پڑھے لکھے آدمی ہو تو ایسا سوچتے ہو نا, گوگا تے کیراباؤ تے بھی چینی پا کے کھاندا ہے. اچھا تمہیں پتا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا وہ کون سا آم ہے جس نے پہلی بار غیر ملکی سرزمین پہ قدم رکھا؟ چونسا. سب سے پہلا جو کریڈٹ جاتا ہے نا اس حوالے سے وہ جنرل ضیاء الحق کو جاتا. اور آموں کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق کا ویسے بھی ایک خاص تعلق ہے کیونکہ بہرحال دنیا سے رخصتی کی وجہ بھی ان کی آموں کی پیٹی ہی بنی تھی, آپ کو یاد ہے. تو سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے لیڈی ڈیانا کو آم بھیجے تھے. اوئے ہوئے, دونوں ہی حادثے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوئے, ضیاء الحق صاحب بھی اور لیڈی ڈائنا بھی. اور پھر بعد میں آپ کو مینگو ڈپلومیسی بھی یاد ہے. اور یہ جو نسل تھی یہ گلاب خاص تھی, یہ سندھ کی ایک نسل تھی گلاب خاص. تو گلاب خاص جو تھا پہلا آم تھا
जो बैरून मुल्क पॉपुलर हुआ था। फिर उसके बाद रास्ते खुलते चले गए, दीगर जो वैरायटी थी पाकिस्तान की। देखो असल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ऐसे दो मुल्क हैं जो बहरहाल आमों की सरजमीन समझे जाते हैं, और पूरी दुनिया में आमों की 1500 के करीब अक़साम है, जिसमें से 1000 अक़साम ऐसी हैं जो इन दो मुल्कों में किसी न किसी तौर पे पाई जाती हैं या मुतारफ करवाई गई थी। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो आमों की इतनी जबरदस्त पैदावार है ना, इसका क्रेडिट जो है ये मुगलों को जाता है। मुगल बहुत सीरियस थे आमों के हवाले से। हाँ, वो आमों के क्रेजी थे। उन्होंने दुनिया भर से मतलब एक्सपर्ट माली बुला के, बागबान बुला के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उस अपनी सल्तनत में उन्होंने मुख्तलिफ जो अक़साम है आमों की, उनकी पैवंदकारी करवाई थी। अरे वाह। ये सबसे पहले जिन वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें तोतापरी था, केसर था, लंगड़ा था। तोतापरी तो अभी भी मिलता है पाकिस्तान में, अक्सर बहुत पॉपुलर नहीं है। लंगड़ा तो अक्सर बहुत पॉपुलर है ना। तोतापरी भी मिलता है, अभी मिलता है। वो आपने देखा होगा कि उस तोतापरी उसको कहते भी गालबन इसी वजह से है कि उसका जो नीचे वाला एंड है वो बिल्कुल तोते की चोंच जैसा है। अच्छा सर, ये तोतापरी सादा ही होता है या गानी वाला भी मिल जाता है? हाँ, बातें भी करता है। हो सकता है मे बी, इंग्लिश में जिसे मे बी कहते हैं। फिर मुगलों ने बाद दशहरी और अल्फांसो भी मुतारफ करवाए थे। अल्फांसो तो आज भी इंडिया का बहुत पॉपुलर आम है और एक्सपोर्ट के हवाले से भी पॉपुलर है उनका। अच्छा सर, ये आमों की वैरायटी का सिलसिला जो ये खत्म हो गया या अभी भी आ रहा है? नहीं, अभी भी आ रही है। पूरी दुनिया में आमों पे रिसर्च हो रही है। अच्छा। बल्कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों के दौरान 2-3 मेरा ख्याल बल्कि इससे ज्यादा नई वेराइटीज मुतारफ करवाई हैं। अच्छा जी। उसमें एक हनी मैंगो है। हनी मैंगो जो है ये पाकिस्तान ने अपना भी हनी मैंगो मुतारफ करवाया है। उसकी खास बात ये है कि उसकी जो गुठली है वो ना होने के बराबर है, बिल्कुल। यानी मुश्किल, बहुत ही छोटी और पतली गुठली होती है उसके, बगैर गुठली के आम उसको कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप अपनी फैक्ट्री जो है वो शहर से दूर ले जाए। बहुत अच्छे, ताकि बंदा बेचारा जो जूता खरीदे वो पहन के शहर तक पहुंचते पहुंचते अपना जूता फिर कसा बैठे। तो गई। नाज़रीन, एक वक्त था जब हम माहौलियाती आलूदगी को तरक्की याफ्ता कौमों का चोंचला समझते थे, लेकिन अब जब ये मसला एक इफरेत बन के हमारे सरों पे मुंडलाने लगा है तो हमें इसकी हकीकत का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है। आज हमारे इस शो में मौजूद हैं माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले चंद बुनियादी किरदार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। किरदार नहीं है सर, ये बहुत गलत किरदार हैं। ये लोग जहर फैला रहे हैं। इतना धुआं, इतनी पोल्यूशन, दिल की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, पेट की बीमारी, स्किन की बीमारी सर। एग्जैक्टली जुनैद साहब, ये सिर्फ ये एग्जैक्टली कहने के लिए उधर बैठा है, वरना ये भी हमारे साथ बैठा होता। बल्कि सबसे बड़ा मुजरम तो ये है। क्यों? आप जरा गौर से देख के बताएं, हम में से सबसे ज्यादा आलूदगी किससे फैल रही है? अब बाबूजी, मेरी तो फैक्ट्री है एक छोटी सी, वो मैं चलाता हूँ। मुझे ये आपके बंदे ऐसे ही ले आए। वो जो आपकी छोटी सी फैक्ट्री है ना, वो मनोनी टनों के हिसाब से साफ पानी में जहरीला फुजला शामिल कर रही है। यस एक मिनट यार, ठहर जा। जुनैद साहब, मेरी जूतों की फैक्ट्री है, अब मैं उसे कहां ले जाऊं, मुझे बताएं। जो आपका फुजला है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। और जुनैद साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं महंगाई बड़ी हो गई है, महंगाई बड़ी हो गई है। अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के सिस्टम फैक्ट्रियों में लगने शुरू हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की कीमत तो फिर आसमानों पे खुद ही पहुंचेगी। ओ भाईजान, वो जो भी हालात है वो आपने एक ही दफा नस्ब करवाने हैं ना अपनी फैक्ट्री में, और आप लोगों के पास इतना प्रॉफिट मार्जिन है कि आप वो रख सकते हैं सारे। और दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको वारे में नहीं है तो आप अपनी फैक्ट्री जो है वो शहर से दूर ले जाए। बहुत अच्छे, ताकि बंदा बेचारा जो जूता खरीदे वो पहन के शहर तक पहुंचते पहुंचते अपना जूता फिर कसा बैठे। तो गई। फैक्ट्री में जूता कौन खरीदने जाता है? वो ऐसे ही लाफ्टर ले रहा हूँ। आप असल में अपने एक्ट से भी लाफ्टर ही ले रहे हैं। जुनैद साहब, मेरे ही पीछे पड़ गए हैं ये साथ बैठे हुए हैं पट्ठे वाले, इनसे भी पूछे। इन लोगों ने भी कौम का पट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताएं जरा सर, क्यों नहीं आप जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो रहे हैं? जुनैद भाई, यकीन करके मान लेना कि 2 भट्टों को तो जिग जैग कर लिया, अब तीसरा बस भट्टा करना है जी, जिग जैग, वो भी इंशाल्लाह करीब कर लूंगा। सर, सबसे बड़ा मुजरम ये सबसे छोटा है।
हर दूसरे दिन कूड़े को आग लगा के भाग जाता है ये भी माहौलियाती आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। ये घरेलू सतह पे कूड़े के ढेरों में आग लगा के उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर वो रहा है। सर शर्म नहीं आती? सर शर्म आती है, क्यों नहीं आती? वो उठाने वाले ही नहीं आते, वो लोगों का गुजरना मुहाल होता है। अगर उसको आग लगा के तलफ ना करे तो सर वहां से गुजरा भी ना जाए। तुम्हें अंदाजा है कि जब आप कूड़े के ढेर में आग लगाते हो तो वो धुआं जो है वो क्या असरात मुरतब करता है? असल बात ये है कि हम फैक्ट्री वालों लोगों के पीछे पड़े होते हैं, ये गवर्नमेंट वाले जो असल पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, ये गली मोहल्लों में आग लगाते हैं, फसलों को आग लगा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर ये जो बैठा हुआ है। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर साहब है ना जी है जिनके पास 3 बसें हैं, 2 धुआं छोड़ने वाली हैं। ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚ ਖੁਲਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। आप बुनियादी तौर पर जरा गौर करो, इन सब के पास एक ही जवाब है और वो है वसाइल की कमियाबी या गुर्बत। ये लोग सोच ही नहीं रहे कि माहौलियाती आलूदगी के फैलने के बाद हुकूमत को जो वसाइल खर्च करना पड़ते हैं वो किस खाते में जाएंगे। अल्लाह आपकी खैर करे, यही एक पॉइंट की बात है। हुकूमत बाद में वो माहौलियाती आलूदगी को कवर करने के लिए जो पैसे खर्चती है वो पहले ही लोगों पे खर्च दे। मेरी फैक्ट्री का को बंदोबस्त कर दे आलूदगी का, मेरे भट्ठे का कर दो, बसा ठीक करा दे, ਬਿਲਕੁਲ वो हमारे मोहल्ले में डस्टबिन लगवा दें। आलूदगी खत्म हो गई। देखो ना, बैठे बैठे खत्म कर देती है। हद हो गई है, यानी हर काम के लिए आपने सरकार की तरफ देखना है। जुनैद साहब, आलूदगी फैलने के बाद जो सरकार ने पैसा लगाना है तो फिर पहले ही लगा के क्यों नहीं आवाम को सहूलत मुहैया एक और तरीका भी है सरकार के पास कि आप लोगों को जुर्माने करके फिर अपना खर्चा पूरा करें। जुनैद साहब, इनको जुर्मानों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसे पैसे दे के बच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनको किया हो सबको अंदर, हवालात में किया हो बंद, फिर देखते हैं ये अपने सारे मामला सीधे करते हैं कि नहीं। अरे वाह, ये भी पोल्यूशन के खिलाफ बोल रहा है। उसने नहीं बोलना तो और क्या, आदिल हाशमी ने बोलना है। जुनैद साहब, इसका सारा ननियाल मेरे भट्ठे पे जबरी मुशक्कत कर रहा। यानी अपने ऊपर एक और इल्जाम ले रहे हैं आप। जबरी मुशक्कत भी लेते हो आप लोग? नहीं, मेरा मतलब अक्ल से बोलो, पकड़े जाओगे। ये ना हो कि शो खत्म हो तो बाद में तुम्हारा काम शुरू हो जाए। क्या मतलब समझा नहीं है। यस, भाई, जबरी मुशक्कत कराने वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा यार, आप बताए ना, जब आप कूड़े के ढेर को आग लगाते हो तो जो करीबी दूसरे इलाके के लोग हैं वो इतराज नहीं करते? और सर जी, इतराज क्यों करना है? अगर हम कूड़े को आग लगाते हैं तो इसके बदले में दरख्त भी लगाते हैं। अच्छा। मैंने पुदीने के दरख्त लगाए हैं, पुदीने के। ये जो तुमने पुदीने के दरख्त लगाए हैं उसकी चटनी फिर आरे ते खड़ के बनवा देनी। किस दिन पुदीने के दरख्त के नीचे आके फौत ना हो जाना। जुनैद साहब, बात ये है कि ये हम मानते हैं कि गलतियां हैं हमारी, मगर इसका सद्देबाब करने के लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को खुद सबसे पहले इस मामले की संगीनी का इदराक करना चाहिए कि ये मामला सीरियस कितना है। हाँ जी, इतना सीरियस, इतना सीरियस। जुनैद साहब, अब मैं पासपोर्ट के लिए तस्वीर बनवाने जाता हूँ ना, तो फोटोग्राफर कह रहा होता है मुझे, कहाँ बैठे हो तुम, कहाँ बैठे हो? तो आप मुस्कुरा दिया करें ना, दांतों से पता चल जाएगा। राइट राइट राइट। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये असलम डार साहब जो हैं, हाँ जी, इन्होंने हमें बस मुकदी गल मुकाओ कि हमें इन्होंने सुल्तान राय दिया। जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शटार के तौर पे जो आज जिक्र होना है वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। अच्छा, मैं अपने ताई, मेरा एक अपना टेस्ट है, मैं उनसे बड़ा डायरेक्टर पाकिस्तान में किसी को नहीं मानता। जी, अपनी पसंद भी होती है। ओ हो, असलम डार साहब, क्या बात है। ऐसी वैरायटी की फिल्में दी हुई है ना, नो डाउट, कि सदके जाऊं, ऐसी ऐसी प्यारी स्टोरी, ऐसी ऐसी खूबसूरत ख्याल पेश किया है कि क्या बात है। जी, ये असलम डार साहब जो हैं, हाँ जी, इन्होंने हमें बस मुकदी गल मुकाओ कि हमें इन्होंने सुल्तान राय दिया। बहुत इन्होंने जो बशीरा फिल्म बनाई थी ना जी, उसमें सुल्तान राय साहब ने जो किरदार किया था वो ऐसा जानदार किरदार था कि फिर सुल्तान राय साहब को मरते दम तक वही किरदार करना पड़ा। क्या बात है जी। और डायरेक्टर ने उनका कोई किरदार कबूल ही नहीं किया। बशीरा ही करना पड़ा। ओ हो, असलम डार साहब बहुत बड़े आदमी हुए। जी, बिल्कुल। बहुत बड़े आदमी हुए।
अच्छा, इनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। इनके जो वालिद साहब थे ना जी, जी। MS डार, हाँ जी। मोहम्मद शफी डार साहब, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए। अच्छा जी। और उन्होंने 1956 में 1956 में एक फिल्म बनाई थी। वो भी इतनी बड़ी फिल्म थी कि उससे भी एक स्टूडियो मार्जे वजूद में आया। अच्छा जी। उस फिल्म का नाम था दुल्ला पट्टी। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और उस वक्त आगा जीए गुल जो एवर्न्यू स्टूडियो के मालिक थे, हाँ जी। उससे पहले उन्होंने एक किराए पे स्टूडियो था जी, पंचोली स्टूडियो, मुस्लिम टाउन में। जी। जो अब खत्म हो गया। हाँ हाँ, ये दुल्ला पट्टी बनी उधर थी। अच्छा। दुल्ला पट्टी उधर बनी थी। फिर इसकी इनकम से उन्होंने एवर्न्यू स्टूडियो बनाया था, जो पाकिस्तान का जदीद तरीन और मसरूफ तरीन फिर स्टूडियो बना गया। वाह। ये दुल्ला पट्टी की इनकम से बना हुआ है। वाह। और दुल्ला पट्टी के डायरेक्टर थे MS डार साहब, मोहम्मद शफी डार साहब। वाह रे वाह। और दुल्ला पट्टी के कैमरामैन कौन थे? ये कौन? असलम डार साहब। मोहम्मद शफी डार साहब के जो बेटे थे असलम डार साहब, वो बतौर कैमरामैन थे दुल्ला पट्टी में। वाह 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 वाह। अच्छा पाजनैद, आपको ये सुन के मजा आएगा, ये जो मोहम्मद शफी डार साहब थे, MS डार साहब जी। ये बेसिकली सहाफी थे। अच्छा। और एक फिल्म मैगजीन, इंग्लिश फिल्म मैगजीन के एडिटर थे। वाह रे वाह। ये असलम डार साहब ने 1968 में पहली फिल्म डायरेक्ट की थी दारा के नाम से। नसरुल्लाह भट्ट साहब मिस्टर एशिया हुए, पाकिस्तान के एक बॉडी बिल्डर। उनको लेके इन्होंने, उस वक्त टार्जन जो नावल था ना जी, बड़ा मशहूर था, बच्चे बहुत पढ़ते थे टार्जन। जी जी। टार्जन पे फिल्म बना दी। वाह रे वाह। देखे ना जरा, पहली सोच ही क्या थी। इंग्लिश आदमी थे असलम डार साहब। टार्जन पे फिल्म बनाई दारा के नाम से। ये पहली थी उनकी। हाँ जी, 68 में वाह। एज डायरेक्टर। और उसमें उन्होंने वो नसरुल्लाह भट्ट साहब जो मिस्टर एशिया थे, उनको उन्होंने हीरो ले लिया। वो टार्जन फिल्म देख के गोगे ने एक दफा एक दरख्त की शाख को पकड़ के ना छलांग लगा दी। पूरा दरख्त ले सोच लो क्या हुआ होगा दरख्त के साथ। नाल दरख्त लैके उड़ गया होना। दारा के बाद एक फिल्म चट्टान बनाई डार साहब ने। उसके बाद जब 1972 में बशीरा बनाई है ना, तो फिर तो हला हो गई ना जी। सुल्तान राय साहब का उरूज शुरू हो गया, डार साहब का उरूज शुरू हो गया, फिल्म इंडस्ट्री का उरूज शुरू हो गया, हला ही हो गई ना हर पास। असलम डार साहब की इतनी वैरायटी है, उन्होंने तो इस कदर मुख्तलिफ फिल्में और टॉपिक छेड़े हैं। देखे ना आप के बशीरा के बाद हैरान कुन बात है कि दिल लगी फिल्म बनाई है। नदीम साहब की दिल लगी फिल्म इतनी खूबसूरत फिल्म, बहुत पॉपुलर फिल्म थी। मैं कहता हूं जी कि कॉमेडी सी एक लव स्टोरी थी। क्या बात है, सुपर सोनिक है। दिल लगी में ऐसे दिल को लगी के दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। सुपर डुपर। मैं कहता हूं जी, म्यूजिक, स्टोरी, कॉमेडी, सीरियस पोर्शन, हर चीज कमाल थी। जी। फिर एक फिल्म थी बागी शेर, वो भी सुपर हिट। फिर अनोखा दाज, वो भी सुपर सोनिक हिट। फिर एक फिल्म ने तो आके हिला के रख दिया ना, हिला के रख दिया। उस वक्त मुख्तलिफ दूसरे हीरोज जो थे वो हिट थे, हीरोइंस बड़ी बहुत पॉपुलर थी दूसरी। मगर सरकार ने क्या किया कि अयाज जो एक लड़का आया था, बहुत अच्छा हीरो, और अयाज नाइक। अयाज नाइक, वो फिर गायब हो गया हुआ है अब। अयाज को हीरो लेके, और दुर्दाना रहमान साहिबा बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं हमारे लिए, तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मर हैं, मगर वो एक कैटेगरी में नहीं थी आती। मगर उनको साथ डाल के मेन हीरोइन इश्क नचावे गली गली, देखो जही फिल्म दी है कि बल्ले बल्ले बल्ले, उसके भी गाने पूरे पाकिस्तान में बज रहे थे। तेरा इश्क नचावे गली गली। थैले भाई ये भी कच्ची टुट गई जिना दी यारी, पतना ते रोन खड़ियां। मैं कहता हूं जी कि इतनी खूबसूरत वो फिल्म आई थी, ऐसी लव स्टोरी आई थी कि उसने हिला के रख दिया था उस वक्त सबको। इतनी वैरायटी थी डार साहब के काम में कि हर फिल्म दूसरे से मुख्तलिफ थी। बिल्कुल, मिजाज मुख्तलिफ, कहानी मुख्तलिफ, एक्टर्स मुख्तलिफ। बिल्कुल वो बिलीव नहीं थे करते कोई हीरोइन को या एक ही हीरो को पकड़ के नहीं उन्होंने सारी जिंदगी। आमतौर पर यही देखा गया कि अगर एक फिल्म हिट हो जाती है तो उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी हिम्मत की बात होती है, और ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी मौजूद है। बड़ी वैरायटी थी डार साहब के काम में। मैं तो उनका इतना मदा था
कि एक दफा एक जगह पे बहुत सारे डायरेक्टर्स एक अवार्ड शो में बैठे हुए थे। जी जी तो मैंने ना जी स्टेज पे आया तो मैंने बाद में जंप करके ना हॉल में तो जाके डार साहब के पाँव में बैठ के सबके सामने कहा, मैंने कहा जी आपसे बड़ा यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं। बड़े प्यार से मुझे ऐसे उन्होंने किया जी उधर वाह जी। आवाज उनकी बड़ी भारी सी थी, हाल तो ठीक हो। तो लगते अंग्रेज थे पूरे गोरे, बड़े खूबसूरत आदमी थे और इतने बड़े डायरेक्टर अपने काम में इतनी मेहनत करते थे। वफात पा चुके हैं असलम डार साहब, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आपने हर हजूम के पीछे लगना शुरू कर दिया तो कभी भी हजूम के आगे नहीं लग पाएंगे। बहुत अच्छे, मैं इसीलिए तेरे पीछे पीछे रहता हूँ। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।